صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا کا۔ اللہ کے دوست ہر قسم کے خوف و غم سے بے نیاز ہیں۔ تو جو لوگ ان اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، وہ بھی بے خوف ہو جاتے ہیں، لا خوف ہو جاتے ہیں، غموں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج کی اس روحانی محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میر مجلس عزت مآب رہبر شریعت پیر طریقت حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ فرید پور شریف، آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم اکاڑا آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام وابستگان سلسلہ، مریدین، عقیدت مندان، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں حاضرین اور قوالوں کے درمیان بالکل حائل نہیں ہونا چاہتا، صرف چند لمحات کے لیے بس ایک دو باتیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے کہا آپ کے گوش گزار کر دی جائیں۔ آج کا دور نفسا نفسی کا دور ہے، بے چینی، پریشانی، ڈپریشن، مصیبتیں، طرح طرح کی خلفشاریاں، ظاہری، باطنی، ملکی، گھریلو، معاشرتی، ہر لحاظ سے ہم ایسے دور میں زندہ ہیں کہ جہاں مسائل ہی مسائل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی۔ جیسے ہم نے دین سے دور ہوئے، اگرچہ ہم ظاہری طور پر دیندار ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، تسبیحاں بھی، سارا کچھ اپنی اپنی جگہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ صفیں کج دل پریشاں سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ تو بس جب تک وہ جذبہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، ایک وہ بھی زمانہ گزرا ہے عالم اسلام پر کہ مسلمانوں کی نگاہ سے دل سینوں میں غیروں کے، کفار کے، مشرکین کے، یہود و نصارہ کے دل سینوں میں کانپتے تھے۔ کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ، وہ کلندرانہ جذبہ وہ کھو دیا کہ آج مسلمان بے یار و مددگار ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کی عزت ہوا کرتی تھی دنیا میں، تو اگر ہم سب کوشش کریں مل کر تو وہ عزت، وہ وقار، وہ مرتبہ دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اگر وہ جذبہ ایمانی جو غزوہ بدر میں تھا، بدر کے میدان میں تھا، اگر آج بھی مسلمانوں میں ہو جائے پیدا، تو فرشتے ان کی مدد کے لیے آج بھی آسمانوں سے آ سکتے ہیں۔ وہ فرشتے اب بھی موجود ہیں، وہ خدا بھی موجود ہے جس نے اس وقت بھیج دیے تھے فرشتے۔ نہ وہ خدا بوڑھا ہوا ہے نہ پرانا ہو گیا ہے، وہی خدا تھا ازل سے لے کر ابد تک، آج بھی وہی ہے، بندے بھی وہی ہیں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے پلٹنا ہے، اپنے
उस भूले हुए सबक की तरफ जो हमने रस्म और रवाज और रवायात के अंदर जो है खो दिया। नात खानियों की महफिलें होती हैं, सारी सारी रात महफिल नात होती हैं, नात खां हजरात अपने अपने अंदाज में गुलहाए अकीदत पेश करते हैं। सुबह को फजर की नमाज कज़ा हो जाती है, अदा भी नहीं करते, न सुनने वाले न सुनाने वाले। हमें बहुत कुछ फिर सुनना पड़ता है लोगों से, अहले इल्म से, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक दरगाह से भी है। हम दरगाहों वाले, दरबारों वाले, आस्थानों वाले, जिनको सज्जादगान भी कहते हैं, जिनको मशाइख भी कहा जाता है, पीराने उज़ाम भी कह देते हैं लोग अकीदत में। तो दरअसल ये सारे नाम जो हैं हकीकत में इसके दर पर्दा लफ्ज़ जो है वो खुद्दाम दीन मोहम्मदी ही हैं। हम सब दीन मोहम्मदी की गुलामी, खिदमत, चौकीदारी, यही हमारी ड्यूटी है। खा मुरीदों में हो, अवाम में हो, बाजार में हो, मकान में हो, दरबार में हो, जहां भी हो, अल्लाह रसूल की बात अल्लाह की मखलूक तक पहुंचानी, यही जिम्मेदारी है। लेकिन होता क्या है कि तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि अपने अकाबरीन असलाफ का जो तरीका है वो हमने बदकिस्मती से छोड़ दिया। बहुत बहुत मशाइख उज़ाम अपनी अपनी ड्यूटियां महसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। बड़े बड़े सर, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। तो उसी की वजह है कि आज तरीकत का नाम भी जिंदा है, तसव्वुफ का भी जिंदा है, रूहानियत भी जिंदा है, ये दरगाहों के निज़ाम भी चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, दीन का एक जाहिर है, एक बातन है। दीन के जाहिर को समझ लिया ये काफी नहीं, दीन का बातन समझना जरूरी है। तो बातन को कौन समझाते हैं? उलमाए बातन। जाहिर को कौन समझाते हैं? उलमाए जाहिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना कोई मुफस्सर था, ना कोई मुहद्दिस, ना कोई फकीह, ना हाफिज, ना कारी, ना सूफी, ना दरवेश, ना गौस, कुतुब, अब्दाल, सूफी, कलंदर, ये कुछ नहीं थे, ये अल्फाज नहीं थे। ये दर्जा बंदी बाद में हुई। दीन आता रहा, वही नाज़िल होती रही, तो कुरान बनता गया। हजूर जो कुछ फरमाते रहे वो हदीसें बनती गई। उसके बाद फिर दर्जा बंदी हो गई। जिसने कुरान मजीद को ज़बानी याद कर लिया, अपने हाफिजे के अंदर महफूज कर लिया, वो हाफिज कुरान बन गए। जिसने किरात सीख ली तो वो कारी बन गए। जिसने इल्म हदीस के ऊपर अबूर हासिल कर लिया वो मुहद्दिस बन गए। जिसने कुरान की तफसीर को जांचा, समझा गहराइयों तक, वो मुफस्सर बन गए। तो इसी तरह बारीकियों को समझने वाले फकीह बन गए। तो दीन का जो बातन था, बातन निजाम, उसको समझने वाले सूफिया कहलाए। उस वक्त सूफिया को क्या कहा जाता था? सहाबा कराम। बात क्लियर हो गई ना? चूंकि आज आप लोग जमा हैं तो हमारी चूंकि ये ड्यूटी है कि जहां भी जाएं कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई पैगाम कन्वे करके जाएं। आप लोग आए हैं तो कोई मैसेज लेकर जाएं। कोई आपसे पूछे आप फलां जगह गए, क्या हुआ जी? नातखानी हुई, कवाली हुई और उठ के आ गए। इतना नहीं होना चाहिए। तो सुबह को जब आप लोगों से मिलें तो आपको पता हो कि जो वहाँ मेहमान आए थे, जो पीराने उज़ाम की दरगाहों के जो जिम्मेदारान थे, उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया है। तो ताकि अगर कोई सवाल करे तो आपके पास मुदल्लल जवाब होने चाहिए। ये नहीं कि कोई सवाल करे और आप कहें जी मुझे तो नहीं पता, मैं पूछ के बताऊंगा किसी मौलाना साहब से। तो चंद नुकात जो आमतौर पर बयान नहीं किए जाते मिंबरों पर, माइक पर, स्टेजों के ऊपर, क्यों? कि ये उनका शोबा नहीं, वो उलमाए जाहिर है। उलमाए बातन की ड्यूटी है कि वो बातन की इस्लाह करें और वो बारीकियां बताएं जो नबी। देखिए, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरी है, मुकद्दम है, पहली सीढ़ी है आगे जाने के लिए। फिर तरीकत मोहम्मदी है, फिर हकीकत मोहम्मदी, मारफत मोहम्मदी। ये सारे दर्जात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर हमने चलना है।
पहली सीढ़ी पर अगर खड़े रहेंगे, सारी जिंदगी खड़े रहेंगे, तो तरक्की नहीं होगी। अगली सीढ़ियों तक जाने के लिए फिर ये औलिया कराम रहनुमाई करते हैं, रहबरी करते हैं, ताकि बंदा अल्लाह से वासिल हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ये सारे मरातब हैं, जिसको सिर्फ अल्फाजों तक ही हम लोगों ने वो तसव्वुफ को, मुझसे सवाल किया पिछले दिनों, यहाँ FM रेडियो पर एक इंटरव्यू आया था, 2 घंटे का प्रोग्राम था, तो उसके अंदर एक सवाल किया कंपेयर ने, मेजबान ने, कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लफ्ज तसव्वुफ नहीं था, वहां लफ्ज शरीयत का था, कुरान है, हदीस है, तो ये तसव्वुफ कहाँ से आ गया, सूफिया कहाँ से आ गए? तो उसके जवाब में मैंने वो बात की जो अभी मैंने पहले गुजारिश की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो मुहद्दिस भी नहीं थे, मुफस्सिर भी नहीं थे, फकीह भी नहीं थे, कारी भी नहीं थे, हाफिज भी नहीं थे। तो ये सारा कुछ जैसे दरसों के अंदर अब दीन सिखाया जा रहा है, ना सरफ नाफ थी, ना गर्दाने थी, ना ग्रामरे थी, ना दरस निजामी था, कुछ भी नहीं था। तो फिर ये सवाल सिर्फ तसव्वुफ पर क्यों है कि तसव्वुफ उस जमाने में नहीं था, अब कहां से आ गया? तो मैं ये कहता हूं बाकी सब कुछ कहां से आ गया, ये सारी दर्जाबंदी बाद की बात है। तो इसी तरह कुरान मजीद के अंदर कहीं मैंने कहा अगर आप अल्फाज की बात करेंगे ना, अल्फाजों के गोरख धंधे में उलझेंगे तो बात बड़ी दूर जा पड़ेगी। पूरे कुरान मजीद में लफ्ज नमाज ही नहीं है, हदीसों में कहीं नमाज का लफ्ज नहीं आया, रोजे का लफ्ज नहीं है, वहां लफ्ज सलात है और वहां लफ्ज सोम है। जब हम नमाज कहते हैं तो मानी सलात के लेते हैं, और जब हम रोजा कहते हैं तो मानी सोम के लेते हैं, सयाम के लेते हैं। इसी तरह जब हम लफ्ज तसव्वुफ कहते हैं तो मुराद दीन का बातन है, सफाए कल्ब व बातन, सफाए रूह, इसकी बात करते हैं। और यही डिमांड है अल्लाह और रसूल की और दीन इस्लाम की। जब तक ये ना हो तेरी नमाज बेसुरू, ये सब कुछ बेमानी है। सफाए कल्ब जो है ये जब तक नहीं होती, चाहे नमाजें पढ़ते रहें, सारी जिंदगी पढ़ते रहें, तो ये जरूरी है। यही सिखाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने फरमाया कि हदीस शरीफ है, ला सलात इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, नहीं होती नमाज बगैर हुजूरी कल्ब के। अल्लाह फरमाता है ऐसी नमाजें मैं तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा। खुशू और खुजू वाली नमाज अल्लाह को दरकार है, अल्लाह की डिमांड है। तवज्जो इल्लल्लाह के साथ मुतवज्जो इल्लल्लाह होना, यही औलिया कराम सिखाते हैं, यही बताते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अखलाकियात को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए भेजा गया। तो जिसका अखलाक नहीं उसका कोई दीन नहीं, उसकी कोई चीज कबूल नहीं। तो हमने अपने रवैयों के अंदर अखलाकियात को अपनाना है, और छोटी छोटी बातों में हम जो उलझ जाते हैं ये मुसलमान का शेवा नहीं। हसद, हजूर ने फरमाया कि एक आग है जो नेकियों को ऐसे जला देती है जैसे आग सूखी लकड़ियों को। अगर किसी बंदे के अंदर हसद पैदा हो जाए तो उसकी सारी जिंदगी की नेकियों को खत्म करने के लिए सिर्फ ये आग काफी है। ये वो मामूली बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो दरअसल बड़ी हैं, इनके ऊपर अमल करना जरूरी है। हमने नमाज को सिर्फ समझ लिया दीन है, मस्जिद तक महदूद कर दिया खुदा को कि अल्लाह मस्जिद में है। नहीं, आप घर में हैं तो फिर भी आप इबादत में हैं, बाजार में हैं तो इबादत हो सकती है, दुकान में है, मकान में है, जहां कहीं भी हो, आपकी पूरी जिंदगी जो है ये इबादत में बदल सकती है अगर हम उस तरीके पर चलें। अल्लाह महदूद नहीं, फ़ैनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखो अल्लाह का ही जलवा है। तजल्ला तेरी जात की सूबसू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो ये बातें जो हैं आपके गोश गुजार करनी मैं जरूरी समझता था। तो अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए किसी दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।